Welcome, my dear students. In the previous session, we discussed data interpretation questions from CUET PG examination 2023. In this session, we'll be discussing questions that have appeared in CUET examination 2022. As we discussed that in 2022, there were a lot of questions from Venn diagrams and some questions from bar graph, line graph, and pie charts in tabulation. So let us start the questions. First set is a 2-question set from Venn diagram. Let us read the questions. In a housing society, 50 households subscribe to paper 1, 60 subscribe to newspaper 2, and 70 subscribe to newspaper 3. Okay. "50 subscribe to newspaper 1, 60 subscribe to newspaper 2, and total 70 subscribe to newspaper 3. Further, 25 households subscribe to both 1 and 2, 20 to both 2 and 3, 10 to both 1 and 3. Now we know कि ये जो 25 है that is for this complete. ठीक है, 1 and 2 only तो है नहीं, तो 1 and 2 से भी है, 1, 2 and 3 वाला पोर्शन भी कवर करेगा. तो सबसे पहले फिलअप करते हैं. देयर आर 5 हाउसहोल्ड्स विच सब्सक्राइब टू ऑल द 3. तो यहाँ पे 5 आ गया, टोटल 25 है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 20. देन 20 सब्सक्राइब टू बोथ 2 and 3, so this value will be equal to 15 for only 2 and 3. Similarly 10 to both 1 and 3, यानी कि only 1 and 3 के लिए 5 हो जाएगा. ओके, तो नाउ फॉर न्यूज़पेपर 1 ओनली कितना होगा? 20 + 5 + 5 30, 50 - 30, दिस विल बी इक्वल टू 20. सिमिलरली फॉर न्यूज़पेपर नंबर 2 ओनली, दिस विल बी 20 + 20 40, यानी कि 20 आ जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर द न्यूज़पेपर 3 ओनली, दिस विल बी 70 - 25 and hence 45. Question number 1 is, if 20 households do not subscribe to any of the 3 mentioned newspapers, then what is the total number of households in the society? तो 20 ऐसे हैं जो कि किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो टोटल विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू? न्यूज़पेपर 1 में 50 है, 50 + 20 70, 70 + 60 130 + 20 150. आंसर विल बी 150. Okay, in the actual exam, this question was dropped. Everyone was awarded marks for this question because option कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन ई है 150. ठीक है. इन दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट में टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड. थिंक अबाउट इट, 8% क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड. तो एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा अप्रोच सही हो, तुमने सॉल्व सही से किया है, बट इसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करे, तो पैनिक नहीं करना है. अगर मेथड सही लगा है तो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस गड़बड़ दिए हों. ऐसा पॉसिबल है, हमेशा नहीं होगा बट कभी ऐसा पॉसिबल है. तो अगर मेथड सही लगाया है या किसी भी क्वेश्चन में ना भी सही लगाया हो, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्वेश्चन ही गड़बड़ था और तुमने बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगा दिया, तो टाइम वापस तो नहीं मिलेगा तुम्हारा. ठीक है, तुम्हारा खेल हो जाएगा उस सवाल में, इसलिए ये अवॉइड करना है हमेशा किसी भी एग्जाम में हो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट सब्सक्राइब टू ओनली 1 न्यूज़पेपर? तो ओनली 1 वाले नंबर कितना है? 20 + 20 + 45. अगेन दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो ड्रॉप्ड. टोटल आंसर आएगा 85. ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा. नेक्स्ट सेट करते हैं. So this is a bar graph set. In a survey among new recruits in an organization, employees were asked what they are likely to buy with their first salary: a mobile phone, a laptop, a holiday, or investment for future. The results of the survey, classified according to male and female employees, are shown in stacked bar chart. Females are in light blue and for males values are in dark blue. Okay, mobile, laptop, holiday, and investment for future. Question number 1, approximately how many people are likely to buy a mobile phone with their first salary? So the number is equal to 180. Total 180 है. D. Very easy question, कुछ भी नहीं करना है इसमें. Question number 2, the total number of female employees who participated in the survey is approximately what? Female employees total कितने होंगे? Approximately. So females are in light blue. So this value यहाँ पे कितना आ रहा है? 60. This here is approximately 40.
this here 1 2 3 4 80 and this value here is 20. 80 plus 20 100 plus 100 200 will be the answer. Option B. Question number 3. Approximately how many more female employees than male employees are likely to go on a holiday with their first salary? So female employees are 80 who are planning to go on a holiday, while males are 60. तो difference है 80 और 60 के बीच में 20 का. Option D will be the answer. So very easy set. Okay. है कि नहीं? तो केक वॉक सेट हैं बिल्कुल. आई एम श्योर इस बार इतने ईजी नहीं आएंगे, बट ठीक है, विल बी डिस्कसिंग फॉर दैट एज वेल. ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है. नेक्स्ट सेट करते हैं बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ. द फॉलोइंग लाइन डायग्राम गिव्स द एक्सचेंज रेट ऑफ द पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP, अगेंस्ट द इंडियन रुपी फॉर 3 consecutive weeks. फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे ऑफ द फर्स्ट वीक 1 pound is equal to rupees 97.12. So question number 1 है, on which day of the week out of the 3 weeks is the average daily rate of the pound the lowest? Lowest कहाँ पे है? तो lowest value कहाँ पे दिख रही है? टिप जो कि मिनिमम हो. ठीक है, डिप यहाँ पे भी है, बट दिस इज मिनिमम 96.39. दिस वैल्यू इज मिनिमम, और ये वैल्यू आ रही है हमारी ट्यूसडे को. तो आंसर विल बी ट्यूसडे. ऑप्शन बी. Question number 2. What is the percentage increase in the rate of the pound on Friday of the week 2 as compared to Tuesday of week 1? So Tuesday of week 1 is minimum 96.39 और Friday of week 2 के लिए कह रहा है, सॉरी Friday of week 2, हाँ Friday of week 2 के लिए कह रहा है. तो Friday of week 2 का वैल्यू क्या है? That is 98.61. ये तो है Friday, हाँ. This is 98.61 which is approximately 2.22 higher. डिफरेंस कितना है? 2.22 का. ओके, तो परसेंटेज में कितना आएगा? सिंस से 100 के आसपास की वैल्यू 96.39, दिस इज द बेस वैल्यू, और बेस पे चेंज आ रहा है अपना 2.22 का. तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3% विल बी द आंसर. 2.6 तो नहीं होगा, क्लियरली ऑप्शन सी आंसर होगा. एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दूर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 3. सपोज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द वेडनेसडे ऑफ वीक 3 इज इनकरेक्ट. तो वीक 3 का वेडनेसडे का वैल्यू इज इनकरेक्ट. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. The correct value gives average of week as 97.066. So that is the correct average of the week. What is the correct value of Wednesday week 3? सारी वैल्यूज 97 के आसपास की है, 97 के आसपास की वैल्यूज हैं. ठीक है, सो एक तरीका हो सकता है कि हम सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें. वेडनेसडे वाले को इग्नोर करना है बिकॉज वहां पे इनकरेक्ट वैल्यू लिखा है, तो लेट अस से दैट इज इक्वल टू एक्स. ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स, और बाकी वैल्यूज को ऐड करें और फिर उनका एवरेज निकालें, फॉर्मूला लगाएं. बट उसमें कैलकुलेशन में एक तो कैलकुलेशन भी टिपिकल हो जाएगी, फिर गलती होने का गुंजाइश भी रहता है. तो बेटर क्या होगा यहाँ पे? बेटर विल बी कि या तो हम 97 को अपना एवरेज एज्यूम कर लें. ओके, क्योंकि 97 के आसपास की सारी वैल्यूज हैं, इज दैट सो? और साथ में क्योंकि डेसिमल के बाद का है कहानी, तो ऐसे समझो दिस इज 97066. ओके, सो ये वैल्यू क्या हो गया? दिस इज 96820, दिस इज 97600, दिस इज 97700, दिस इज 97060. ओके, अब 97 के आसपास की वैल्यूज है, तो देख लेते हैं 97 से कितना कम या कितना ज्यादा है. तो 96820 इज 97 minus 180. दिस इज प्लस 600. वेडनेसडे को छोड़ दो, देन प्लस 700, और देन लास्ट में प्लस 60. ओके, सो ये टोटल कितना आ गया? प्लस पे 7 + 6 1360, और माइनस 180. तो इफेक्टिवली ये आ रहा है हमारा, दिस इज प्लस 1180 फॉर 4 डेज. वेडनेसडे का हमें पता नहीं है. ओवरऑल एवरेज हमारा 97066 है. ओके, और क्योंकि हमने 97 को एवरेज माना हुआ है, तो ये 97 से 66 ज्यादा है. अगर एवरेज हमारा 97 से 66 ज्यादा है 97,000 से एसएच, तो सम कितना ज्यादा होगा? सम विल बी 66 × 5, यानी कि 330 ज्यादा होगा. और यहां पे वैल्यू आ रहा है प्लस 1180, यानी कि प्लस 1180 आ रहा है. तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करें हम, सो दैट हमें नेट में 330 एक्स्ट्रा मिले. अगर 850 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा अपना. तो जो वेडनेसडे का वैल्यू है दैट मस्ट बी 97,000 माइनस 850, यानी कि 96150. अब डेसिमल वापस से लगा देते हैं, दिस विल बी 96.15. ऑप्शन ए. क्या बात समझ पा रहे हो?
क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, दिस विल बी 96.15। और चाहो तो कन्वेंशनल तरीके से कर लो, बट उतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? मतलब समझने में भी ये बेहतर है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? और एवरेज में हमने इन कॉन्सेप्ट को बार बार डिटेल में डिस्कस किया है कि जब भी कभी एवरेज लेना है तो हमेशा एज्यूम्ड एवरेज मान के क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT and join the telegram group that is CADS@MBA. Next question. So next is a pie chart based question. Two questions का set है I guess. The following data gives the percentage of the top 10 states in terms of the number of foreign tourist visits in India in 2019. Data is taken from tourism.gov.in. The total number of foreign tourists visiting India in 2019 is 31408666. ठीक है, इन वैल्यूज से टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आसान ही होगा। वैल्यूज टोटल क्या है? टोटल 100% कितना है? टोटल इज 31408666। टोटल 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है। हाउ मेनी पीपल विजिटेड तमिलनाडु इन 2019? Now from the pie chart we can see that Tamil Nadu के लिए वैल्यू गिवन है 22%। परसेंट में सारी की सारी वैल्यूज है, 22% वैल्यू है। ठीक है, सो 31408666 में 10% कितना होगा इसका? 10% कितना होगा? 10% विल बी 314। टोटल 7 डिजिट का नंबर होगा, 314 से स्टार्ट करके। ठीक है, 7 डिजिट का नंबर होगा, 10%। 20% विल बी डबल ऑफ दैट, यानी कि 628 एंड देन 4 एक्स्ट्रा डिजिट्स, 4 और डिजिट्स होंगी, टोटल 7 डिजिट का नंबर होगा। और फिर 22% है, यानी कि दिस इज 20% प्लस 2%। 2% विल बी अगेन 628 आएगा, बट डिजिट्स कम हो जाएंगे तो बस ऐड कर दो। ठीक है, वैल्यू क्या बनेगा? 690 आएगा या 691 आएगा अल्टीमेटली, और टोटल 7 डिजिट का नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। खत्म सवाल। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस डिजिट्स का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, बिकॉज क्वेश्चन उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what is the difference between the highest number of foreign tourists visiting any state out of the top 10 and the lowest number? Highest number of foreign tourists और lowest number of foreign tourists का difference कितना होगा? That is what the question is asking. Highest is for Tamil Nadu 22%, lowest is for Goa 3%. Okay, गोवा से ज़्यादा लोग बिहार विजिट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हाईएस्ट है 22% और लोएस्ट है 3%। डिफरेंस आएगा हमारा 19%। डिफरेंस आ जाएगा 19%, यानी कि 20% माइनस 1%। अगेन 20% हमें पता है क्या है? दैट विल बी 628 फॉलोड बाई 4 डिजिट्स, यानी कि टोटल 7 डिजिट का नंबर होगा। और 1% विल बी 314 बट फॉलोड बाई 3 डिजिट्स। ठीक है, आगे डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है तो माइनस करेंगे। सो दिस विल बी 628 माइनस 31, तो 590 क्या आ जाएगा वैल्यू? अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्लोज वैल्यूज आ रही हैं, अपनी क्लोज वैल्यूज आ रही हैं। 597 भी है, 596 भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। 628 के बाद में क्या आएगा, क्योंकि डबल कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 31408 है, तो दिस विल बी 62817, 62817 आएगा, एंड दिस विल बी 31408, यानी कि 3140 या 1 के आसपास की वैल्यू आएगी। उतना क्लोज आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 62817 है, माइनस 31 कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 1 6 हो गया, 11 माइनस 4 7 हो गया, और फिर यहाँ 7 माइनस 1 6 हो गया। दिस विल बी 59676 के आसपास की वैल्यू आएगी। ऑप्शन सी, 597 नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2 ही क्वेश्चन का सेट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेबल बेस्ड है। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाई 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिविंग इन स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑन फूड, travel, rent, and miscellaneous expenses along with their monthly budget. The gender of the students are mentioned in brackets, M for male and F for female. What percentage of their total expenditure do the female students together spend on travel? The female students are Sonia, Komal, and Shruti. Okay, so what percent of their total expenditure do the female students together spend on travel? तो total expenditure कितना है इनका? 27 plus 27 plus 22, that is 54 plus 22, यानी कि 76,000 इस टोटल मंथली बजट। और ट्रैवल पे स्पेंड कर रहे हैं ये 4,500,
and 4,500, which is 9 plus 4, 13,000. 13,000 out of 76,000. So percentage में this will be 13 upon 76 into 100. Roughly this will be 13 into, क्योंकि वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं, this will be 13 into 4/3, क्योंकि 75 के आसपास की वैल्यू है. सो अराउंड 52/3, 17% के आसपास. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among all the 6 students spends the highest percentage of their monthly budget on food? फूड पे सबसे ज्यादा कौन स्पेंड कर रहा है, यानी कि रेशियो है अल्टीमेटली फूड अपॉन टोटल का रेशियो जिसका मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा. फूड अपॉन टोटल. फॉर सोनिया दिस इज 12,000 अपॉन 27,000, यानी 12 अपॉन 27. फॉर दीपक दिस इज 10,000 अपॉन 25,000. तो 12/27 कितना है? 12/27 इज 4 अपॉन 9, विच इज 44%. 44% के आसपास की वैल्यू है. 44% से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है. और फॉर दीपक दिस इज 10/25, यानी कि 40% है. 2/5 40% है. क्लियरली दीपक आंसर नहीं होगा और ऑप्शन में भी नहीं गिवन है. और कोमल दिस इज 12/27 अगेन, यानी कि कोमल के लिए भी 44% आ रहा है. अगर सोनिया और कोमल दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है तो सोनिया और कोमल में से कोई एक आंसर हो सकता है, और दोनों का जब इक्वल आ रहा है तो एक भी आंसर नहीं हो सकता. तो क्लियरली डेफिनेटली हमें इससे बड़ी कोई वैल्यू मिलने वाली है. ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि बोथ तो कहीं पे गिवन नहीं है. गौरव के लिए दिस इज 9,500/22. ओके, तो दिस विल बी 95 अपॉन 220. अगेन ये भी ऑप्शन आंसर नहीं है. और क्लियरली क्योंकि हमें अर्नब दिया है, अर्नब इज 11,000 आउट ऑफ 25,000. ओके, सो दिस इज 11/25, यानी 44% है. बट लेस देन अर्नब का इज लेस देन सोनिया, बिकॉज सोनिया का 44.44% आ रहा है एक्चुअल में सोनिया के केस में, और कोमल के केस में दिस इज 44.44%, जबकि अर्नब के केस में एग्जैक्टली 44% है. तो अर्नब भी आंसर नहीं है, यानी कि आंसर तो श्रुति है. खत्म हो गया सवाल. और बाकी श्रुति के लिए दिस इज गिवन 10/22, यानी कि 5/11. 5/11 यानी 45.45%. तो दिस विल बी अवर आंसर. क्लियरली, पर ये देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हमें पता चल गया कि आंसर अपना श्रुति ही होने वाला है, कोई भी और आंसर नहीं हो सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग ऑल द 6 स्टूडेंट्स स्पेंड्स द लीस्ट परसेंटेज ऑफ देयर मंथली बजट ऑन ट्रैवल? लीस्ट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट ऑन ट्रैवल. सबसे कम कौन स्पेंड कर रहा है? सोनिया इज स्पेंडिंग 4,000 आउट ऑफ 27,000. दीपक 5,000 आउट ऑफ 25,000. ओके, तो दीपक का तो डेफिनेटली ज़्यादा है एक्सपेंडिचर. सबसे ज़्यादा देखो मंथली बजट किसका है? सोनिया का. और सबसे कम ट्रैवल पे स्पेंडिंग किसका है? सोनिया का. तो ट्रैवल अपॉन मंथली बजट किसका मिनिमम होगा? सोनिया का ऑब्वियसली, क्योंकि मंथली बजट मैक्सिमम है, ट्रैवल मिनिमम है. तो क्लियरली ऑप्शन सोनिया आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो दिस सेट इज अबाउट वेन डायग्राम पे बेस्ड सेट है. In a survey of 400 college students regarding their preferences for 3 kinds of food, pasta, pizza and burger, 25% said they like pasta and pizza, 25% said they like pasta and burger, and 20% like pizza and burger, 10% said they like all 3. ठीक है, तो बना लेते हैं सेट. वैसे तो ये क्वेश्चन वेरी डूएबल है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऐसा कर ही चुके हैं. तो पास्ता PST, पिज़्ज़ा PGG, और लास्ट में है बर्गर BRG. ओके, तो टोटल 400 स्टूडेंट्स है. 25% सेड दे लाइक पास्ता एंड पिज़्ज़ा. सबसे पहले 10% लाइक ऑल 3, तो 10 को मिडिल में कर दो. परसेंटेज में वैल्यूज है सारी की सारी. 60% लाइक पास्ता, 65% लाइक पिज़्ज़ा, एंड 55% लाइक बर्गर. नाउ 25% लाइक पास्ता एंड पिज़्ज़ा. तो 25% है, यानी कि 15% होगा पास्ता एंड पिज़्ज़ा ओनली. 25 पास्ता एंड बर्गर. तो यहाँ पे देखो ध्यान क्या रखना है, इन्होंने ऑर्डर देखो थोड़ा सा चेंज किया है. तो पास्ता एंड बर्गर इधर पे है, उस साइड में नहीं है, ये ध्यान रखना है. शायद यही कंफ्यूज करने के लिए होगा इस क्वेश्चन में. दैट्स ऑल. तो 25% टोटल है, यानी कि 15% होगा पास्ता एंड बर्गर ओनली, और 20% पिज़्ज़ा एंड बर्गर. सो पिज़्ज़ा एंड बर्गर ओनली होगा 10%. 15 + 15 30 + 10 40. सो दिस विल बी 20 फॉर पास्ता ओनली, देन 35, so 30 for pizza only, and 35, so 20 for burger only. Question is, what is the percentage of students who like at least 2 out of
दीज एटलीस्ट 2 को लाइक करते हो तो कितना नंबर आएगा हमारा एटलीस्ट 2, यानी कि ये जो बीच का पोर्शन है, these values, this will be 15 plus 15 30 plus 20 50%. क्लियर है? ठीक है, डायरेक्टली भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 25% लाइक पास्ता एंड पिज्जा बोथ प्लस 25% लाइक पास्ता एंड बर्गर बोथ प्लस 20% लाइक पिज्जा एंड बर्गर, तो ये तीनों को ऐड कर दिया, दिस इज 70%। बट यहाँ पे जो ऑल 3 वाला है वो पोर्शन 3 बार काउंट हो गया, 3 बार काउंट हुआ है तो उसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि -2 × 10%। So this is 70 minus 20 and hence 50%. Okay. Next question. How many students like only pizza out of the 3 kinds of food? Only pizza, क्या नंबर आया? Only pizza is 20%. 20% है, तो आंसर विल बी 80, क्योंकि 400 टोटल नंबर है, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट सेट, ये भी वेन डायग्राम पे बेस्ड सेट ही है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, इस क्वेश्चन में। हाँ, इन द स्कूल देयर आर 250 स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द इंडोर गेम्स ऑफ चेस, कैरम और सुडोकू। सो दैट इज गिवन कि एटलीस्ट एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि कोई भी गेम नहीं खेलता हो, दैट इज फॉर श्योर। देन गिवन कि 110 स्टूडेंट्स प्ले चेस, 90 प्ले कैरम एंड 100 प्ले सुडोकू। 20 play chess and carom, 20 students play carom and sudoku and 25 play chess and sudoku. All 3 नहीं given है, वही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, वही हमको इस क्वेश्चन में निकालनी है वैल्यू। ओके, सो number of elements in A union B union C, that is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A union B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, यूनियन नहीं होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या है? चेस, कैरम एंड सुडोकू। तो टोटल नंबर इज गिवन फॉर श्योर, बिकॉज हमें पता है कि एटलीस्ट एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं जो कि 0 गेम खेलता हो। टोटल 250 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज 250। एन ए एन बी एन सी कितना है वो गिवन है 110 प्लस 90 प्लस 100 माइनस 2 गेम्स खेलने वाले कितने हैं, दैट इज 20 20 एंड 25, और प्लस तीनों गेम्स खेलने वाले जिनका नंबर हमें निकालना है अल्टीमेटली। तो दिस वैल्यू इज 110 प्लस 90 प्लस 100 300, दिस इज 65, तो 300 माइनस 65 विल बी 235, तो 235 प्लस लेटर से दिस इज इक्वल टू एक्स, तो टोटल आ गया 250, तो डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? और फॉर्मूला लिखा है, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूला लिखा है इस तरह से, अदरवाइज तुमको एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, सीधे सीधे लिखोगे वैल्यूज को, सीधे ऐड करोगे। 300 आ गया, 300 माइनस 65 235, 15 और होगा, 15 विल बी द आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस। ठीक है, तो ओनली चेस वाली जनता कितनी होगी? तो नाउ वी नो कि ऑल वाले हैं कितने? 15 है, 15 जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं, इजंट इट सो? और टोटल हमारा चेस खेलने वाले कितने हैं? टोटल चेस खेलने वाले हैं 110, टोटल चेस का नंबर है 110। अब इस 110 में से 20 ऐसे हैं जो कि चेस और कैरम दोनों खेलते हैं, 15 ऐसे हैं जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं, 15 तो यहाँ पे आ गया, और चेस और कैरम वाले टोटल 20 हैं, यानी कि 5 नंबर यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 25 ऐसे हैं जो कि चेस और सुडोकू खेलते हैं, 15 तो तीनों खेलते हैं, यानी कि 10 ऐसे होंगे जो कि ओनली चेस एंड सुडोकू खेलेंगे। अब यहाँ से हमें बचा हुआ वैल्यू निकल आएगा, सो दिस वैल्यू विल बी 110 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 5, दिस विल बी 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, तो 80 विल बी द आंसर। चाहो तो पूरा वेन डायग्राम बना लो, बट एक से अपना काम चल रहा है, उतना ही क्वेश्चन पूछा है, और क्योंकि और कोई क्वेश्चन है नहीं, 2 ही क्वेश्चन हैं इस सेट में, तो इतना ही बना के अपना काम चलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है।
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन. और भी क्वेश्चंस हैं, बट वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो सेट वेन डायग्राम पे बेस्ड है और रिपीटेटिव हैं. 2022 में दो क्वेश्चंस के कई सेट पूछे हैं सेट थ्योरी पे और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस थे, तो कोई मतलब नहीं है रिपीटेटिव सेट्स को और एडिशनली करने का. सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना है. अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है. और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज CATZAT-MBA, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. अगर सेशन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना. बाय बाय, टेक केयर.